Good morning, all. Welcome to Meta Learning. This is lecture number 7 on our previous year question series. And anybody who is new here, welcome. And anybody who is watching the lectures consistently, welcome back and congratulations because you're going really well. All right. And as I've always told you, that these previous year questions are centered for aspirants of CTS and NDA. We, as mentioned in the orientation lecture, we aim to finish the previous year questions of the last 5-6 years of both the exams that happen in like 1 year of basically both the cycles, and just try and cover as much ground and as much previous year questions as possible, including the concepts. We will not only mug up the question कि हाँ हमने previous question देखा, हमने solve किया, हम आगे बढ़ गए. That is not how this lecture is going to go. We are going to deep dive into every question. I am not one of those people जिनको पता है कि मतलब obviously I can tell you trends की themes कौन से हैं कौन से नहीं हैं और repetitive questions किस चीज से आ रहे हैं. But if a question has come, no matter how much any uh, teacher or any educator says, or even any as person says with however much experience, with no disrespect to anybody, but with full honesty, I don't know कि question कहाँ से बन के आएंगे, right? We can only rely on previous question about the themes and repetition of certain questions. But अगर कोई question ऐसा है जो कि regularly trend में नहीं था, it was a bouncer at the time, we won't be leaving it to that. I will cover it, okay? And I will cover it in depth. And we will see one of those questions today. Other than that, sorry for my voice, but please keep a bottle of water with you when you start this lecture. As I've always mentioned, please pause the video when the question is on your screen and then try to answer it yourself. It will help you cover the gap between your understanding and approach with and what I'm teaching here. Maybe your approach might be better, then please do comment. All right. हम ऑप्शन वाइज एनालाइज करेंगे हर एक क्वेश्चन को, and I will try and teach you the approach that is needed on the D-Day. I'll give you strategies around it. I will also give you ideas how to make a strong guess, even if on the day like there are questions you're not able to do. तो ये strategies आपके वहाँ पे भी काम आएंगे. Other than that, we'll also definitely cover the conceptual depth of each theme, each topic, alright, beyond what the question is asking. तो हम reverse engineering approach यहाँ पे use कर रहे हैं as said, and yeah, that's it. I believe everybody has understood. Also, anybody who is new here, please go back to the channel, watch the orientation lecture and watch the previous 6 lectures. Okay. अब हम यहाँ पे I think these are one of the last questions which came like in the recent CDS exam, जो कि ancient history से related है. Now moving forward, I think by the end of it, there will be questions about political Indian polity, and then we will be moving towards the Indian polity part of it. Okay, चलिए, let's try and tackle the first question. So the first question is, which one of the following statements about the Buddhist goddess Hariti is correct? She was converted by Buddha from a bloodthirsty Yakshi to a benevolent maternal figure. She is feminine personification of wisdom. She protects people from 8 great fears. She is a warrior goddess associated with the dawn. Okay, now these are all very different questions.
I mean, very different statements. I would like you to pause the video right here and try to answer it yourself. Of course, you need to know about the story of Hariti for this, but yeah, don't worry, I'll take you through it. I hope you have paused it and tried to answer it yourself. Let's try to approach the question now. Okay, so now before obviously analyzing the options, let's understand about Hariti. Okay, let's understand about whom? Let's understand about goddess Hariti. Okay, so also you should know that there is also जापानीज बुद्धिज्म में इनको किशिमोजन नाम से जानते हैं और चाइनीज बुद्धिज्म में गुइजिमो ये आ सकता है इसलिए मैंने मेंशन कर दिया है होपफुली ना आए बट स्टिल आई जस्ट लेट यू नो नाउ ओरिजिनली शी वाज अ यक्षिनी ओके यक्षिनी क्या मतलब लाइक फीमेल नेचर स्पिरिट डीमन ऐसा ठीक है एंड इवेंचुअली शी बिकेम a Buddhist protective deity. Now, what happened was that that जो गॉडेस हरिति थी उनका कन्वर्जन हुआ था तो कन्वर्जन से पहले क्या था कि वो एक यक्षिनी थी और वो बहुत फियर्स थी ब्लड थर्स्टी थी काफी टेरिफाइंग हुआ करती थी एंड देन वो क्या करती थी शी यूज्ड टू किडनैप एंड डिवावर चिल्ड्रन alright and the legend says ki she used to feed her own like her motivation was to feed her own 500 children ठीक है 500,000 जैसे नंबर है चिल्ड्रन तो इसकी वजह से ना जो वहाँ के उसके आसपास के एरिया के जो पेरेंट्स होते थे वो कॉन्स्टेंटली फियर में रहते थे डरे रहते थे और ये स्टोरी है राजगीर की ठीक है राजगीर बिहार तो फिर क्या हुआ कि डिस्पाइट हर सेल्फ बीइंग अ मदर वो जब दूसरे के बच्चे किडनैप करके यू नो डिवा देंगे तो एक कॉन्ट्रडिक्शन सेंट्रल स्टोरी क्रिएट सी हो गई एंड फिर यहाँ पे बुद्धा का इंटरवेंशन होता है तो बुद्धा की स्ट्रैटेजी क्या थी कि उन्होंने अपील किया था बुद्धा ने मतलब बेसिकली विलेजर्स ने बुद्धा को अपील किया था हेल्प के लिए तो बुद्धा ने डिसाइड किया कि वो हरिति को कंपैशन सिखाएंगे ठीक है डायरेक्ट एक्सपीरियंस से तो उन्होंने क्या किया उन्होंने जो हरिति का जो सबसे छोटा सबसे उनकी जो सबसे बिलवेड चाइल्ड थी उसको अब मुझे नाम नहीं याद है बट आई थिंक प्रियंका या कुछ ऐसी नाम था उनको छुपा दिया और फिर अपने कहते हैं कि सुपर नेचुरल पावर्स को यूज करके उनको कंसील कर दिया मतलब छुपा दिया ठीक है तो फिर उसके बाद वो बहुत फ्रैंटिक हो गई फ्रैंटिक मतलब बहुत परेशान हो गई हरिति और वो ढूंढ रही थी अपना बच्चा एंड जब उनको नहीं मिला शी वॉज ग्रीफ स्टिकन शी वॉज वेरी सैड तो जब वो उसको बिल्कुल ही नहीं ढूंढ पाए तो शी एक्सपीरियंस द सेम पेन जो कि वो बाकी लोगों को कॉज कर रही थी तो फिर उसके बाद हरिति फाइनली बुद्धा के पास आती है अप्रोच करती है बुद्धा को और फिर उनसे उनको बेग करते कि प्लीज उनका जो बेटा उनको उसको ढूंढ दे फिर बुद्धा वापस रिवील करते हैं जो उन्होंने कंसील किया था बच्चे को और बेसिकली उनको ये बोलते कि हाँ तुम्हारा 500 चिल्ड्रन है तुम्हारा एक मिसिंग हो गया तो तुम्हारी ये हालत हो गई लाइक यू आर डूइंग दिस टू द पेरेंट्स ठीक है और फिर देन द ट्रांसफॉर्मेशन हैपेंड ऑफ गॉडेस हरिति कि मतलब बेसिकली हरिति कि शी वाज स्ट्रक बाय रियलाइजेशन देन शी द सफरिंग कॉज्ड वो उसको समझ में आया उनको रिमोर्स हुआ कंपैशन हुआ तो उन्होंने फिर बुद्धिस्ट vows ली एंड शी converted into a Buddhist and उन्होंने रेफ्यूज लिया बुद्धा के अंदर धर्म को फॉलो किया संघ में शामिल हो गई उन्होंने अहिंसा फॉलो करने का प्रण लिया ठीक है और फिर कन्वर्जन के बाद बुद्धा ने उनका जो बच्चा था उनको वापस कर दिया एंड yeah that was the story basically okay now
when did this goddess thing happen? Now, because she came back from such a down place, तो इसलिए उनको फिर गार्जियन deity for mothers and children का honor मिल गया था eventually, because she became very compassionate and everything. तो ये था उनकी स्टोरी. अब हम ऑप्शन बाय ऑप्शन चलते हैं. अब तो काफी क्लियर हो गया होगा कि आंसर क्या है इसका, बट हम स्टिल ऑप्शन बाय ऑप्शन चलते हैं. ठीक है. Now option A is she was converted by Buddha from a bloodthirsty yakshi to benevolent maternal figure. ठीक है. तो is it true, is it not? bloodthirsty yakshi थी, वो मैंने बताया. किडनैप करती थी. She used to eat children, yes. And she was a terrifying demon, yes. ठीक है. बुद्धा का रोल क्या था? He did convert her, he did hid her child, he taught her compassion direct experience से. ठीक है. And she took the Buddhist vow, so she converted, right? फिर she became the benevolent maternal figure. मतलब benevolent maternal figure का मतलब she became उदारवादी एक maternal figure is basically like a figure for maternal ममता, ठीक है, की फीलिंग के लिए. और she became a protector of children in fact, और that's why, and she was given the honor of goddess as well. तो क्या ये स्टोरी हमारी लाइन अप होती है? यस, होती है. अभी मैंने आपको बताया था. ठीक है. तो वैसे तो हमारे आंसर हो गया कंप्लीट, बट आई विल स्टिल टेक यू थ्रू द रेस्ट ऑफ द पॉइंट्स ताकि आपको बाकी चीजें भी पता चल जाए. तो शी इज द फेमिनिन personification of wisdom. अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या होना चाहिए? When you are saying she was the feminine, अब तुमको हमें ये तो पता है कि ये नहीं है आंसर, तो कौन है feminine personification of wisdom? That should be your question. That is how you should approach the question, right? So the question is who represents wisdom in Buddhism, right? तो 3 है. एक है प्रज्ञा पारमिता, दूसरी है तारा और तीसरी सरस्वती. ठीक है. these are the 3 goddesses जो कि वो विजडम को पर्सोनिफाई करती हैं बुद्धिज्म. प्रज्ञा पारमिता का क्या था? शी वाज, उसका मीनिंग क्या है? परफेक्शन ऑफ विजडम. शी वाज पर्सोनिफाइड एज गॉडेस इन महायाना बुद्धिज्म. ओके. ये महायाना फिलॉसफी की है. ओके, आई रिटन इट हियर आल्सो. तारा जो थी वो फीमेल बोधिसत्व थी. ठीक है. वो कंपैशनेट एक्शन और स्विफ्ट विजडम से रिलेटेड है. इनका जो प्राइमरी एसोसिएशन है. और ये टिबेटन कल्चर में काफी फेमस है. ठीक. देन सरस्वती. सरस्वती जो है वो बुद्धिस्ट हिंदू सिंक्रेसिटी है, जो कि गॉडेस ऑफ नॉलेज एंड आर्ट्स एंड विजडम है हमारे हिंदुइज्म में भी. तो इट वाज समटाइम्स अडॉप्टेड इन बुद्धिस्ट पैंथियन एज वेल. Okay, although I've not mentioned it here, I'm just letting you know. Now, हरिति का रिप्रेजेंटेशन किस चीज से है? चिल्ड्रन से, मैटरनल केयर से, फर्टिलिटी से, गार्जियन ऑफ फैमिली के हिसाब से. ठीक है. तो स्पेसिफिकली विजडम से रिलेटेड तो नहीं है. तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन. हमने अपना सेकंड पॉइंट भी आंसर कर लिया है कि who was related to wisdom. Definitely not हरिति. ठीक है. Now, because she was related to children, motherhood, protection. Now, हमने सेकंड कर लिया. अब थर्ड ऑप्शन में चलते हैं. थर्ड ऑप्शन इज she protects people from 8 fears. Now, for to be able to answer this question, first and foremost, you should know the 8 fears. What are the 8 fears? You should know that, right? If somebody knows, pause the video and comment in the comment section. If you don't, then continue with the video and I'll tell you. ठीक है. तो what are the 8 great fears? 8 great fears in Buddhist tradition, जिसको अष्ट महाभय कहते हैं. भय वो है फायर, अग्नि, जल, वाटर, सिंह, लायंस, हस्ती, हाथी, एलिफेंट, सांप,
snakes, thieves, robbers माने चोर, और imprisonment, chains और demon मतलब evil spirits. ठीक है? I think yeah. Okay, these are the 8 fears in Buddhism. अच्छा यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं कर दिया. चलो ठीक है. अब इसकी वो कौन थी जो 8 fears हमने मेंशन किए हैं. तो अब कोई तो प्रोटेक्ट कर ही रहा था लोगों को, वरना ये ऑप्शन ही नहीं होता. Who used to protect from the 8th fear? It was green Tara. Now what do I mean by green Tara? अब जो हमने यहाँ पे एग्जैक्ट ये तारा पढ़ा है ना, who was related to compassion and wisdom. Same like goddess Tara was like also famous, like had multiple forms in different, like there was white Tara, there was green Tara. ठीक है, जो कि टिबेटन बुद्धिज्म में काफी फेमस है. तो जो ग्रीन तारा थी, she was responsible for protecting people from the 8 great fears. Okay, so green tara was the primary deity associated with it. Each fear has a specific story. वैसे तारा की कैसे तारा जी ने इंटरवेंशन की थी और कैसे बचाया था. ओके, काफी फेमस है टिबेटन बुद्धिज्म में, इफ यू सर्च अबाउट इट. एंड चलो ये हो गया. इसमें इनफैक्ट 8 रेस्क्यूज भी हैं. ये 8 fears के अगेंस्ट 8 रेस्क्यूज भी हैं. आर्ट, there's art showing this, the 8 rescues, but that is not important. All right, I'm just letting you know. उसके अलावा now that we have mentioned most of the things, हमारा लास्ट है, she is a warrior goddess associated with the dawn. ये कौन है warrior goddess? कौन है? ठीक है, अब चलिए चेक करते हैं. हरिति हो सकती है. हरिति मैटर्नल फिगर है, प्रोटेक्टर है, पीसफुल डिमीनर है उनका. तो बेसिकली like if she is like protector of children, surrounded by children, ठीक है, तो she is not shown as a warrior, right? Who is the warrior goddess in Buddhism? It's Palden Lamo. Palden Lamo. Palden Lamo Tibetan Buddhist में इनको warrior goddess माना जाता है, जो कि काफी wrathful फॉर्म है क्या कहते हैं प्रोटेक्टेड एंटिटी का. वैसे ही एक मारिची नाम से है. मारिची इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद डॉन, तो वो गॉडेस ऑफ लाइट एंड सन कहा जाता है. ठीक है, उनके चैरियट इज पुल्ड बाय बोर्ड्स मतलब पिग्स से. ठीक, और वज्र योगिनी इज अनदर फॉर्म जो कि इसे एसोसिएट किया जा सकता है. मैंने 3 गॉडेसेस नाम इसलिए लिया है क्योंकि तीनों ही वॉरियर गॉडेसेस के तरीके से एसोसिएटेड है. ठीक है, चलो अब हमने मोस्टली सारी चीजें, जो चीजें हमें नहीं भी पता थी, हमने ऑप्शन बाय ऑप्शन हर चीज को डीपली समझ लिया है. तो एज सेट ऑप्शन बाय ऑप्शन वी हैव गॉन. कन्वर्टेड बाय बुद्धा, हरिति, गॉडेस हरिति वाज कन्वर्टेड बाय बुद्धा फ्रॉम bloodthirsty yakshi to benevolent maternal figure. Yes, exactly matches the story, so correct. Feminine personification of wisdom कौन था? वो थी प्रज्ञ परमिता. ठीक है, it was not Hariti. Can be Tara even, but it's not Hariti. It's wrong. Protects from the 8 great fears. It's not Hariti. It's green Tara या फिर Tara. और warrior goddesses of dawn, it's Marichi, not Hariti. तो बाकी 3 ऑप्शन गलत हो जाते हैं. First option is the right answer. Okay. चलो. Now that we have done most of this, let's just like cover बुद्धिज्म टू इट्स कोर कंप्लीटली. ठीक है, जितना भी आ सकता है हम यहीं पे देख लेंगे, फिर देखते हैं कि क्या गलत हो सकता है आपसे. ठीक है, एक बार में समझ नहीं आएगा, दूसरी बार देखिए, तीसरी बार देखिए, बट बार बार देख के ये एक टॉपिक खत्म कर लेते हैं. ऑलराइट, चलिए नाउ लेट्स. सबसे पहले तो ये कि बुद्धा के इम्पोर्टेंट इवेंट्स ऑफ लाइफ को कौन से सिंबल से हम मेंशन करते हैं या फिर सिंबलाइज करते हैं. जन्म इज लोटस एंड बुल. और ये कहाँ पे सिंबलाइज होते हैं? आर्ट में, आर्किटेक्चर में, राइट.
Then Mahavinish grammar मतलब renunciation of the world, it's by horse. Okay. And Nirvan is, or enlightenment is through the Bodhi tree. Why the Bodhi tree? Because he was enlightened under the Bodhi tree at Bodh Gaya. चलो, फिर धर्म चक्र प्रवर्तन मतलब इनका जो फर्स्ट सर्मन था, इट इज symbolized by the wheel, and Mahaparinirvan, which is death through stupa. Okay, now these are the symbolisms and these are the events related to them. All right, now इसके अलावा हमें क्या पता है कि बुद्धिज्म था, बुद्धिज्म जो है उसको फाउंड किसने किया था? सिद्धार्थ गौतम ने। सिद्धार्थ गौतम ने उसके बाद फिर क्या किया? उन्होंने लुम्बिनी में वो पैदा हुए थे, फिर उन्होंने क्या कहते हैं, अपना घर त्याग दिया। उसके बाद फिर ही वेंट फॉर एस्थेटिज्म। एस्थेटिज्म मतलब एस्थेटिक लाइफ लीड करने के लिए ही डिड अ लॉट ऑफ मेडिटेशन और तपस्या। तपस्या करके क्या हुआ? एनलाइटनमेंट मिली। एनलाइटनमेंट मिली तो एनलाइटनमेंट को क्या कहते हैं? निर्वाण कहते हैं। ठीक है। रिनाउंसिएशन को क्या कहते हैं? महाविनिष्क्रमण। ठीक है। फिर जब उनको निर्वाण मिल गया, तो निर्वाण मिलने के बाद फिर उन्होंने बुद्धिज्म की स्थापना की। बुद्धिज्म की स्थापना हुई तो फिर उसके बाद उसमें थ्रू डायलॉग एंड थ्रू डिबेट्स फॉलोअर्स बढ़े, डिसाइपल्स बढ़े। फिर आफ्टर दैट ऑफ बुद्धा क्या कहते हैं, कन्फ्लिक्ट्स बढ़े। लाइक इन एनी रिलीजन, कन्फ्लिक्ट्स क्या था कि देयर वाज that Buddhism divided into two sects. What were these two sects? There was the Mahayana and the Hinayana. Maha मतलब महान, big, हीन मतलब छोटा। लेकिन ऐसा this is just to say nothing is big or small by the way. But महायाना जो व्हीकल था उसमें क्या होता था? महायाना व्हीकल में सूत्रायना और तंत्रायना है। ठीक है। और तंत्रायन कहाँ फॉलो होता है? टिबेटन ट्रेडिशन और जापानीज ट्रेडिशन में। ठीक। और हिनायना जो है वो श्रावक्स और प्रत्येक बुद्ध का इनका टीचिंग है। ऑलराइट, चलिए इतना हमारा हो गया। अब आगे देखते हैं। चलो, अब हम पहले समझते हैं इंपॉर्टेंट थीम्स क्या बुद्धिज्म में, जो आपके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओरिजिन ऑफ बुद्धिज्म कवर्ड, इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट साइट्स अभी हम पढ़ेंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ बुद्धिज्म अभी हम पढ़ेंगे, मेजर बुद्धिस्ट टेक्स्ट आई विल टेल यू अबाउट इट, स्कूल्स ऑफ बुद्धिज्म, स्वदेश दर्शन स्कीम, प्रसाद स्कीम, देखो अपना देश इनिशिएटिव, यूनेस्को बुद्धिस्ट हेरिटेज साइट। व्हाई एम आई टेलिंग यू ऑल दीज थिंग्स? बिकॉज दे आर इंपॉर्टेंट। बिकॉज इफ यू जस्ट गूगल इट अप एंड जस्ट एक बार आपके दिमाग में रन हो जाएगा तो आपके लिए इजी रहेगा। चलिए, मूविंग फॉरवर्ड। चलिए, अब वी शुड, व्हाट एल्स वी शुड नो अबाउट बुद्धिज्म? वी शुड नो अबाउट द फोर नोबल ट्रुथ्स ऑफ बुद्धिज्म, राइट? व्हाट आर द फोर नोबल ट्रुथ्स ऑफ बुद्धिज्म? पहला है दुख, ठीक है। दूसरा है समुदाय, तीसरा है निरोध और चौथा है कि अठंग मार्ग से मतलब अष्टांग मार्ग से जो निरोध है, उस मतलब जो निर्वाण है वो पाया जा सकता है। ठीक है। नाउ सफरिंग इज इनएविटेबल, इट इज द एसेंस ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, दैट इज द फर्स्ट ट्रुथ। सेकंड ट्रुथ इज समुदाय। समुदाय मतलब समुद्य, मतलब एवरी सफरिंग हैज अ कॉज। हर एक सफरिंग के पीछे एक रीजन है, कोई पीछे कोई ना कोई कारण है। निरोध का मतलब क्या है? निरोध का मतलब है सफरिंग कुड बी एक्सटिंग्विश्ड। सफरिंग इनएविटेबल है मतलब, लेकिन वो खत्म ऐसा नहीं है कि वो हमेशा चलती रहेगी। इट कैन बी एक्सटिंग्विश्ड। कैसे एक्सटिंग्विश होगी? 8 फोल्ड पाथ पे चल के, अष्टांग मार्ग पे चढ़ के। ठीक है। चलो, 8 फोल्ड पाथ कौन कौन से हैं? 8 फोल्ड पाथ है हमारा राइट व्यू, राइट इंटेंशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट माइंडफुलनेस, राइट एफर्ट, राइट कॉन्सेंट्रेशन। ओके, इसको आप बार बार रीड करिए, इससे आपको याद हो जाएंगे 8 फोल्ड पाथ। ऐसे घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है कि 8 फोल्ड पाथ में इनमें से कौन सा नहीं है या फिर कौन सा है, ऐसे। ठीक है, तो आप फंस जाएंगे। उस चीज को ना होए तो इसलिए यहीं पे है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रिवाइज इट राइट आफ्टर दी लेक्चर। ठीक है। चलिए, ना 8 फोल्ड पाथ हो गई। 8 फोल्ड पाथ के बाद फिर क्या होता है कि बुद्धा ने कोड ऑफ कॉन्डक्ट रखे थे अपने उनके लिए।
मोनास्टिक ऑर्डर के लिए, ठीक है। जिसको पंचशील कहते हैं या फिर 5 परसेप्ट्स कहते हैं। वो क्या थे? कि नॉन वायलेंस, वो क्या कहते हैं, जिससे एब्सटेन करना है, रिफ्रेन करना है, नहीं करना है। वो क्या था? वायलेंस नहीं करना है तो वायलेंस, स्टीलिंग नहीं करनी है मतलब चोरी नहीं करनी है तो वो सेक्सुअल मिसकॉन्डक्ट नहीं करना है, किसी के साथ गलत काम नहीं करना है, ठीक है। लाइन या फिर गॉसिप नहीं करनी है, झूठ नहीं बोलना है, ठीक है। और टेकिंग इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंसेस मतलब ड्रिंक्स नहीं पीनी है, ड्रग्स नहीं करने हैं, ये सब चीजें लिखा हुआ है, ये सब चीजें नहीं करनी है, ये सब चीजों से रिफ्रेन करना है। दीज आर दी 5 परसेप्ट्स जो कि मोनास्टिक ऑर्डर में भी बोला गया है कंडक्ट करने के लिए, और लेमन के लिए भी है कि हाँ फॉलो करें, ना करें ये सब चीजें, ठीक। और इसके अलावा हाँ, तो हमें भी पता है कि 4 काउंसिल्स हुए थे बुद्धिज्म के, राइट। तो जो 4 काउंसिल्स हुए थे उसमें जो त्रिपिटकास थे वो लिखे गए थे, राइट। और डिफरेंट उसमें, और जो उससे पहले टीचिंग होती थी वो किसमें होती थी? संघ फॉर्म में होती थी। संघ फॉर्म में होती थी मतलब कम्युनिटी में होती थी। क्या वो ओरल थी? यस, ओरल थी। उसको लिखने का जो पूरा वो था, वो लेटर ईयर्स में हुआ है। पहले ओरल फॉर्मेट में था, पहले डायलॉग में था, ठीक है। नाउ ये जो टीचिंग थी दे वर ऑथेंटिकेटेड एट द फर्स्ट काउंसिल। तो उस टाइम पे 3 पिटाका में इसको डिवाइड किया गया था, इनके जो टेक्स्ट है 483 बीसी में, ओके। कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया था इसको? पाली में। 3 पिटाका कौन से हैं? विनय पिटाका, सुत्त पिटाका और अभिधम्म पिटाका। कौन कौन से हैं? विनय पिटाका, सुत्त पिटाका और अभी धम्म पिटाका। विनय पिटाका किस चीज के बारे में? इट इज अबाउट द रूल्स ऑफ कॉन्डक्ट एंड डिसिप्लिन एप्लीकेबल टू whom? एप्लीकेबल टू मोनास्टिक लाइफ फॉर मॉन्क्स एंड नन, ठीक। सुत्त पिटाका किस चीज के बारे में है? इट इज द मेन टीचिंग्स और धर्म और बुद्धा, ठीक। इट इज डिवाइडेड इनटू 5 निकाय, 5 निकाय मतलब 5 कलेक्शन, और मतलब मान लो वॉल्यूम टाइप का, मान लो आप बुक की वॉल्यूम है ऐसे। कौन से हैं ये निकाय? एक है दीघ निकाय, दीर्घ निकाय, दीघ मतलब बड़ा, दीघ निकाय। दूसरा है मध्यम निकाय, मध्यम मतलब मध्यम, मध्यम, मीडियम निकाय। देन संयुक्त निकाय, अगुत्तरा, अंगुत्तरा निकाय, एंड देन कुडक निकाय, ओके। अभिधम्म पिटाका जो है वो किस बारे में? इट इज अ philosophical analysis and systemization of teaching, जो कि scholarly activity of monks से related है। ये philosophical analysis के बारे में है। बेसिकली इसमें स्टोरीज हैं, टीचिंग कैसे होती थी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, स्कॉलरली एक्टिविटीज के बारे में धम्म पिटाका में, ठीक। इसके अलावा और कौन से टेक्स्ट थे? दिव्य वदन था, दीप वंश, महावंशा, श्रीलंका के हैं, उनके भी थे। मिलिंद पान्हा लिखा, पानहु होगा, देन पानहु। तो ये सारे टेक्स्ट थे। तो अब हम लोग ने टेक्स्ट के बारे में पढ़ लिया। नेक्स्ट इज जो जिसके बारे में बताया था, जो जो 4 काउंसिल्स हुई थी, बुद्धिस्ट काउंसिल्स। पहला फर्स्ट काउंसिल कहाँ हुआ था? राजगृह में, 400 बीसी में, अंडर द पैटर्न अजात शत्रु। अजात शत्रु मतलब, अजात शत्रु मतलब दिस इज रिलेटेड टू एट द टाइम ऑफ मौर्यन एम्पायर, ओके। तो ये प्रेसिडेंसी उस टाइम पर महाकश्यप की थी। प्रेसिडेंसी मतलब क्या? इस काउंसिल को की प्रेसिडेंसी किसकी थी? प्रेसिडेंट कौन था काउंसिल का? महाकश्यप, okay. The Buddhist canon as it exists today was settled at this council and preserved as an oral tradition, okay. सेकेंड काउंसिल कहाँ होती है? वैशाली में, 383 बीसी में, ओके। उस टाइम पे काला अशोक थे और सबगामी was the president of the council. First schism occurs in which Mahasanghika school parts ways with the, बेसिकली यहाँ पे डिवीजन हो गया था ऑफ सेक्स, ठीक है। थेराविदन्स जो है वो अलग हो गए थे और थेराविदन्स जो थे वो एक तरफ हो गए थे, ठीक। नाउ थर्ड काउंसिल होता है वो कहाँ होता है? पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र
कहाँ 250 BC में अशोक के टाइम पे, ठीक है। और उस टाइम पे प्रेसिडेंसी किसकी थी? मोगलीपुट्टा तिस्सा की। और इस टाइम पे अभिधम्म पिटाका एस्टैब्लिश होता है। फिर हमारा आता है फोर्थ काउंसिल। फोर्थ काउंसिल कहाँ हुआ था? कश्मीर में हुआ था 72 AD में, कनिष्क के टाइम पे। इस टाइम पे प्रेसिडेंसी किसकी थी? वासुमित्र की। और इस टाइम पे बुद्धिज्म गॉट डिवाइडेड इनटू महायान और हिनायाना। ओके, आपको ये चीज याद रखनी है, लिटरली प्लीज डू रिमेम्बर दिस। फाइन, इससे ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिवली एंड कवरेज आपको हार्डली कहीं मिलेगा. सो लाइक जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट, रिमेम्बर दिस, रिवाइज दिस. ओके, देन यूनेस्को हेरिटेज साइट्स ऑफ रिलेटेड टू बुद्धिज्म. ठीक है, तो यूनेस्को हेरिटेज साइट्स कौन कौन सी हैं? पहला है नालंदा महावीरा एट नालंदा बिहार. The second is Buddhist monuments at सांची मध्य प्रदेश. महाबोधि टेम्पल जो कि बोध गया में है. फिर अजंता केव्स जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में. ठीक है, ये 4 यूनेस्को हेरिटेज साइट्स हैं. अब इसके ईयर्स कौन से साल में बने थे या फिर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप लगाएंगे और इसको कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे. ठीक है, और नॉट. चलो, this we have covered. Let me take a break for 5 minutes, then we'll continue and we will cover this question. Okay, so let's tackle this question next. This question is regarding Abramsha. The Abramsha is a crucial transition language in Indian linguistic history, and it helps us understand how modern Indian languages were developed. Okay. So, question is, consider the following statements about literary language Apabhramsh. It appeared in recognizable forms by the 6th century, or it developed out of mixtures of regional vernacular matlab local vernaculars with the Prakrits and Sanskrit. Which of the following statement is correct? Only one. Statement 1 is correct, statement 2 both or neither, right? So before like jumping on to the question or like options, let's just first understand the linguistic timeline. I have not put it here, I'll just try to mention it. सबसे पहले आपका वैदिक संस्कृत आता है. लिंग्विस्टिक टाइमलाइन दे रही हूँ मैं आपको. सबसे पहले आपका आता है वैदिक संस्कृत. ठीक, फिर ये किस टाइम पे है? ये है अराउंड 1500 से 1500 BCE से 500 BCE तक. ठीक है, दिस वाज द आर्काइक फॉर्म ऑफ संस्कृत. एंड इस टाइम पे कॉम्प्लेक्स ग्रामर थी, एलीट प्रीस्ट वगैरह का कॉन्सेप्ट था उस टाइम पे ही यूज. ये जो वैदिक संस्कृत थी, प्रीस्ट लोग ही मतलब जो पूजा करते हैं वो, और जो एलीट लोग क्लास थी वो यूज करती थी. ठीक है, फिर क्लासिकल संस्कृत आती है. Now this is the development of language. Alright, now classical Sanskrit comes. Classical Sanskrit जो है उसको कहते हैं उस टाइम पे 500 BCE onwards आती है. 500 BCE onwards आती है तो it was further standardized by Panini, जिन्होंने ग्रामर लिखा, संस्कृत ग्रामर की बुक लिखी थी, अष्टध्यायी. राइट, इसी टाइम पे पनीनी आए थे. ठीक है, पनीनी ने 500 to 400 BCE में अपनी अष्टध्यायी लिखी थी. उन्होंने स्टैंडर्डाइज किया था क्लासिकल संस्कृत को. उन्होंने ग्रामेटिकल रूल्स बनाए थे, लैंग्वेज ऑफ लिटरेचर फिलोसफी साइंस बताई थी. ठीक है, और इट वाज कंटिन्यूड एज द लैंग्वेज ऑफ द एलीट. ओके, देन कम्स प्राकृत. Now प्राकृत कौन यूज करता था? अब ये प्राकृत में there is an overlap of 600 BCE to 1000 BCE का टाइमलाइन इसका. It was a novel local common language. Okay, it was derived from Sanskrit. It was लेकिन simpler. इसके बहुत multiple varieties है प्राकृत के. Okay, what were they? पाली, मगधी, महाराष्ट्रीय मराठी. Okay,
शरासनी, अर्धमगन, ये सारे इसके अलग। और अर्धमगधी का मगधी फर्स्ट क्या था, जैन टेक्स्ट में यूज जो हुआ था, रिमेम्बर दैट। अर्धमगधी जो है एज अ लैंग्वेज उसमें यूज हुआ है, जैन टेक्स्ट में। दीज वर द मल्टीपल वैरायटीज ऑफ प्राकृत। फाइन। देन अपभ्रंश आता है इसके बाद। नाउ अपभ्रंश जो है वो 600 BC से 1300 CE तक रहता है। BC, no, it is from CE, 600 CE, 600 CE से 1300 CE तक रहता है। और ये ट्रांजिशनल स्टेज है, यहाँ पे ट्रांजिशन हो रहा है। व्हाट डू आई मीन बाय ट्रांजिशनल स्टेज? ये प्राकृत और मॉडर्न जो लैंग्वेज है ऑफ इंडो आर्यन लैंग्वेज, वो उसके बीच का ट्रांजिशन पीरियड था। यहाँ पे ट्रांजिशन लैंग्वेज है, ठीक है। नाउ अपभ्रंश जो है वो उसके बाद फिर इंडो आर्यन लैंग्वेज जो थी वो आ जाती है। What is the timeline of the same? That is 1000 CE onwards. इसमें हिंदी, बंगाली, मराठी, गुजराती फर्दर आगे जाके डेवलप होते हैं, ठीक है, लोकल लेवल पे। इट वॉज डेवलप फ्रॉम अपभ्रंश ओनली। ये रीजनल वैरायटीज हैं और अभी भी इवॉल्व हो रही हैं। ठीक, अब हम क्या कहते हैं, लिंग्विस्टिक हायरार्कीज और क्रोनोलॉजी समझ चुके हैं, राइट। तो वी कैन इजीली आंसर दिस क्वेश्चन। पहले संस्कृत आती है। संस्कृत जो है दैट वाज यूज बाय द एलीट, लिटरली थी, अनचेंजिंग थी। फिर प्राकृत आता है, इट वाज कॉमन, स्पोकन बाय द कॉमन पीपल। इसकी रीजनल वैरायटीज थी। रीजनल वैरायटीज कौन कौन सी थी? पाली, मगधी, महाराष्ट्री, शौरसेनी और अर्धमगधी। फिर अपभ्रंश आता है, वो ट्रांजिशनल मिक्स्ड एक लैंग्वेज थी जिसको लिटरेरी और स्पोकन दोनों ही यूज किया जाता है। फिर मॉडर्न इंडो आर्यन लैंग्वेजेस आती हैं जो कि रीजनल नेशनल लेवल पे यूज होती हैं, ठीक है। नाउ इतना समझ गए। अनदर थिंग, व्हाट डू आई मीन बाय अपभ्रंश, लाइक मीनिंग क्या है वर्ड की, टेक्स्ट की, इस टर्म का मीनिंग क्या है? आप भ्रंश का मीनिंग क्या है? आप मतलब अवे ऑफ, भ्रंश मतलब फॉल, करप्शन, ठीक है। दैट विच हैज फॉलन अवे, करप्टेड फॉर्म of the language is abhramsh, okay. And people just saw it as a corrupted or like fallen away uh, type or variety of Sanskrit language. That's why it was called abhramsh. Okay. Now that we have an understanding, we can now attempt the question, okay. Now in statement 1, it says that it appeared in recognizable forms in 6th century. Let's verify. क्या अपभ्रंश जो है वो 6th century BC में था? I've written it right here. 6th century, sorry BC बोलो, CE. क्या 6th century CE में था? Yes, 6th century CE में था. From 6th century CE to 1300, 7th century, right? So there is historical evidence for the same. So it was not fully developed, but it was identifiable there. So this is correct. Now moving forward, second statement says that in developed out of mixture, it was developed out of mixtures of regional vernaculars with Prakrit and Sanskrit, right? Then was it a developed form of mixed sources? तो अपभ्रंश जो है उसका एक थ्री वे मिक्सचर था। वर्नाक्युलर मतलब जो स्पोकन लोकल लैंग्वेजेस थी उसके मिक्स से बना था, ठीक है। प्राकृत के भी मिक्स से बना था, संस्कृत के भी मिक्स से बना था, विच इज ट्रू, ठीक है। So it basically provided for a basic spoken form of by providing a mix of local commonly used language and the elite form of elite language that was being used, right? So this is also true. So are both, so इसका आंसर क्या 1 only होगा? नहीं. 2 only होगा? नहीं. Neither 1 and 2 होगा? नहीं. So we have collected क्या दे गया? The answer is both 1 and 2. All right.
So इसके अलावा can we do something else? Can we revise something else regarding this? You can remember that short सेनी जो मैं आपको बता रही थी आभ्रंश वो eventually हिंदी को फॉर्म करती है, हिंदी एज ए लैंग्वेज को. ओके. एंड वो इस रीजन इस नॉर्थ नदर्न प्लेन रीजन का था. अदर देन दैट कोई पोएट्स वी कैन ऑल्सो रिमेम्बर आभ्रंश के टाइम के जो पोएट्स थे वो कौन कौन से थे जो इस लैंग्वेज में लिखे थे. तो स्वयंभू, पुष्पदांता जो कि एक जैन पोएट थे जिन्होंने महापुराण लिखा था. और हेमचंद्र जो कि ग्रामेरियन थे, पोएट थे, स्कॉलर थे. ठीक है. उन्होंने सिद्ध मेशब, आई थिंक मेशब, धनुषान कुछ ऐसे कहते. ग्राम बेसिकली वाज द ग्रामर ऑफ अपभ्रंश एंड प्राकृत टुगेदर. ठीक है. चालुक्य किंग के टाइम पे लिखा गया था. ठीक है. अपभ्रंश में आपको जैन टेक्स्ट मिलेंगे, एपिक पोएट्रीज मिलेंगी, लिरिक पोएट्रीज मिलेंगी. That was the use of the language. इसके अलावा do you need to know anything else regarding linguistics? I don't think so. I think mostly I've covered most of it. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. If there's any question regarding our branch language evolution or Indian linguistics, you can ask in the comment section, and yeah, just let me know. Alright. I hope कि once you have understood this particular uh, series of development of or evolution of languages, you won't be making any mistakes during the exam. Right? चलिए, moving forward. In which one of the following works has Amir Khusro praised the climate of India, its languages, notably Sanskrit, its art and music, and even its animals? ठीक है. Now pause here and try to answer it yourself. चलिए, let's try to answer this now. तो आमिर खुसरो ने क्या कहते हैं अपने कौन से वर्क में इंडियन क्लाइमेट, लैंग्वेज, संस्कृत, स्पेशली आर्ट, म्यूजिक और एनिमल्स की प्रेज किया है, बड़ाई की है? Was it Jaz Khusrawi? Was it Diwal Rani Khidr Khani? Or Khazainul Futuh और नूसिफे? इनमें से कौन से है? ठीक है. Now before we get into the question and the options, of course we will get some contextual clarity, right? तो पहले हम कुछ not random but like previously asked questions में से जितने भी questions थे मैंने आमिर खुसरो में ढूंढ पाई हूँ आज बाय यूपीएससी, उनको पहले देखते हैं और उन कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं, उस थीम को समझते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी सुल्तान्स ऑफ द दिल्ली सल्तनत डिड आमिर खुसरो सर्व ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम? 7. उन्होंने बालबन से लेके गयासुद्दीन तुगलक तक जितने भी दिल्ली सल्तनत के वो थे सुल्तान थे सबको सर्व किया था. ओके. इसमें जलाउद्दीन खिलजी था, अलाउद्दीन खिलजी था, कुतुबुद्दीन, मुबारक शाह था, गयासुद्दीन तुगलक था. ठीक है. सारे इन्होंने सर्व किए थे. ऑलराइट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं. Next is Amir Khusro was a disciple of which famous Sufi saint? He was Nizamuddin Aulia. What else he was famous for? He was the scholar. He was the poet. He was the scholar. He was the disciple of the time who also in the Sufi tradition popularized Qawwali. Okay, that is also something that you should know. And other than that, yeah, Nizamuddin Aulia ki ye disciple the. Then Amir Khusro also introduced several Persian
from Arabic rags. तो कौन कौन से राग थे? यमन, भैरव और हमसदवानी, ये तीनों राग आमिर खुसरो ने इंट्रोड्यूस किए थे और पॉपुलराइज किए थे। ओके, उसके अलावा ऑफ कोर्स ये अब आंसर याद है। नाउ कमिंग बैक टू आवर क्वेश्चन, जो हमारा क्वेश्चन है, इट इज आस्किंग कि इन विच ऑफ हिज वर्क्स हैज ही प्रेज्ड अबाउट द इंडियन लैंग्वेज, art, music, and annuals? It's Nucifer. Now, in order to answer this question, you have to be very well equipped with the understanding of his work and his life. ठीक है, जो कि हमने मोस्टली इन क्वेश्चंस के थ्रू कवर कर लिया है, बट वी विल ऑफ कोर्स गो थ्रू मोर ऑफ हिज वर्क एंड अंडरस्टैंड मोर। ठीक है, कि और क्या क्या था। नाउ नूसिफिर जो है इसका वर्क, उसके अंदर पढ़ते हैं। नूसिफिर was written by Amir Khusro in 1318 CE, and where he praised the Indian culture, languages, arts and animals across 9 chapters. ठीक है, he was renowned poet. He was called the parrot of India. ये भी एक previous question by the way. तोताए हिंद के उससे क्वेश्चन आया था। ठीक है, he is credited with inventing musical instruments like sitar. Invented का भी क्वेश्चन बना है और पॉपुलराइजिंग का भी क्वेश्चन बना है कि इन्होंने सितार जो है वो इंस्ट्रूमेंट बनाया था। एंड डेवलपिंग क्लासिकल हिंदुस्तानी म्यूजिक। अदर नोटेबल वर्क्स बाय खुसरो इज ऑफ कोर्स इजाज ए खुसरवी एंड खुसरो और दीवाल रानी खिजर खानी और फुतू। ठीक है, ये दीज आर सम अदर वर्क्स ऑफ हिज। Then we should also know about at the time Persian literature का India में क्या असर था, and same with Sanskrit literature's influence on Persian literature. Now during Delhi Sultanate and Mughal periods, Persian was the official language of administration and culture. We know the official language was of the time was Persian. और उस टाइम पे जो पोएट्स थे, स्कॉलर्स थे, उनको काफी ज्यादा इंडियन कल्चर में इंट्रीगमेंट की सिग्निफिकेंट रोल उन्होंने प्ले किया था। ठीक है, टू एनरिच द इंडियन कल्चर थ्रू लिटरेचर, म्यूजिक एंड आर्ट एट द टाइम। फिर आमिर खुसरो इज कंसिडर्ड वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ इंडो पर्शियन लिटरेचर। नाउ व्हाट इज संस्कृत's influence? Amir Khusro's work often highlights linguistic culture interplay between Sanskrit and Persian. We also admire phonetic beauty, literary depth of Sanskrit, and inspired some of it. It inspired some of his writings as well. All right. Now this is what you need to know about Amir Khusro, and that is it. And other than that, what you can go through is his relation with Sufism. Okay. और इनको तूतिए हिंद कहा जाता था, आई टोल्ड यू आल्सो। उनका रियल नेम अबुल हसन था, अबुल हसन यमीन उद्दीन खुसरो। ठीक है, एंड उत्तर प्रदेश में पैदा हुए थे। और ही आल्सो, हाँ, इन्होंने हिंदी जो लैंग्वेज है जिसको जो कि मॉडर्न हिंदी और उर्दू जो है उससे उसकी प्रीकर्सर मान लो, उस मतलब हिंदी उर्दू जो फॉर्म हुए थे लैंग्वेज वाज evolved form of Hindvi only, and he is credited with developing Hindvi. Okay, so that is another thing जो कि previous question में पूछा गया है। और उसके अलावा इन्होंने दीवांश लिखा है, मतनवी लिखा है, these are his work। और उन्होंने हिंदुस्तानी म्यूजिक जो है वो फॉर्म किया था। उन्होंने तरण जो है वो कॉम्पोजिशन फास्ट पेस, वो एक रिदमिक, उन्होंने वो एक राग भी बनाया था। इसके अलावा he was also one of the first expounders of art of making ghazal and qawwali। ठीक है, सितार मैंने आपको बताया कि he is credited with inventing sitar. He was also sometimes believed to have invented musical instruments like tabla। अगर ये ऑप्शन में आता है तो you can take it। ओके, और जो 7 है तो ये तो ख्याल लुसेंट में लिखा है कि 7 तो है, बट इट इज बिलीव टू बी like anything between 5 to 7। I'll also clear that
ऑल्दो यूपीएससी का माना हुआ आंसर है 7, बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। और इसके अलावा आई थिंक आई हैव मोस्टली कवर्ड दिस। सूफिज्म की जब बात करें तो आई कैन ऑल्सो टेल यू अबाउट सूफिज्म कि सूफिज्म क्या होता है। सूफिज्म इज बेसिकली इट वाज एट जब रिलीजियस रेवोल्यूशन चल रहा था एट द टाइम द 12th सेंचुरी, तो उस टाइम पे जब इवॉल्व कर रही थी ऑर्थोडॉक्सी से वेरियस रिचुअल्स और उससे रिलीजियस, तो इस्लाम जो है दैट वेंट टूवर्ड्स सूफिज्म। सूफिज्म क्या है? सूफिज्म बिलीव्स इन inner purification, love, and direct connection with God. ठीक है, it does not believe in ritualistic prayers and it does not believe in orthodoxy. Orthodoxism जो कि मना करता है म्यूजिक से, जो कि मना करता है सिंगिंग से, जो मना करता है आर्ट से, ठीक है, it did not believe in that. It emerged in the 7th and 10th century CE and it was against the rigidity of institutionalized religion. ओके, और ये पैरेलल रन कर रहा था भक्ति मूवमेंट। अब चलो भक्ति मूवमेंट की बात होगी तो हम क्या क्या रिवाइज कर सकते हैं भक्ति मूवमेंट पे। तो भक्ति मूवमेंट में इट्स अ हिंदू ट्रेडिशन, इट एम्फसाइज्ड ऑन भक्ति, डिवोशन, लव, इनर रियलाइजेशन देन रिचुअल्स। ओके, और सगुण निर्गुण का कॉन्सेप्ट है भक्ति मूवमेंट में और इसमें भी, ठीक है। सूफी में और क्या होता था? सूफी में सिलसिला होते थे। सिलसिला क्या होता है? ऑर्डर्स जो होते हैं सूफी के, उसको सिलसिला कहते हैं, ठीक है, जो कि एक डिसिपल मतलब भक्त को भगवान से जोड़ता है, डिसिपल को गॉड से लिंक करता है, ठीक। जो सूफी टर्म्स होते थे उनको क्या कहते थे? दरगाह कहते थे। ओके, जिक्र क्या होता है? जिक्र का क्या मीनिंग है? क्वेश्चन भी आ चुका है क्योंकि मैं यहाँ पे मेंशन करते हैं जिक्र। ये सब कुछ आपको आपके एनसीईआरटी में मिल जाएगा। वेरी डीपली इट्स बिन एक्सप्लोर्ड इन द सेकेंड बुक इटसेल्फ जो आपकी थीम 2 होती है, जो थीम 2 है क्लास 12th एनसीईआरटी की। ओके, तो आप उसको भी एक बार रेफर कर सकते हैं। तो जिक्र का क्या मतलब होता है? जिक्र इज रिमेम्बरेंस ऑफ गॉड, भगवान को याद करना, जिक्र करना भगवान का। समा इज अनदर टर्म। समा मतलब म्यूजिकल रिसाइटल्स जो होते हैं, जो गाना गाना, समा। और इसके अलावा और कुछ है क्या? या आई थिंक इसके अलावा सूफी ऑर्डर्स आप याद कर सकते हैं। सूफी ऑर्डर्स जो है 12 थे, ठीक है। देयर वर 12 ऑर्डर्स और सिलसिलाज इन सूफीज्म बाय द 12th सेंचुरी। और चिश्ती ऑर्डर जो था या फिर जो चिश्ती सिलसिला था वो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल था, ठीक है, जो कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो कि अजमेर में है, उन्होंने फाइंड किया था, मतलब उन्होंने बनाया था। उसके अलावा जो कि की पर्सन से जो कि एसोसिएटेड थे, अब अकबर से रिलेटेड हम यहाँ पे कर सकते हैं क्योंकि अकबर जो थे ही वाज डायरेक्टली रिलेटेड टू सूफिज्म एज वेल, ठीक है। वो किसको फॉलो करते थे? सलीम चिश्ती को, चिश्ती सिलसिले को फॉलो करते थे। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद बाबा फरीद निजामुद्दीन औलिया आमिर खुसरो, ठीक है। इसके अलावा ऋषि ऑर्डर, ऋषि ऑर्डर पे क्वेश्चन आ चुका है। ऋषि ऑर्डर कहाँ पे था? ये भी एक सिलसिला है ऋषि, ये कहाँ होगा? इट वॉज इन कश्मीर। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय शेख नूरुद्दीन वली 15th-16th सेंचुरी के आसपास, ठीक है। और इसकी जो इंस्पिरेशन थी वो शायवाइट भक्ति ट्रेडिशन से थी। खुद चलिए अब हम लोग इससे आगे बढ़ सकते हैं व्हेन विल कम बैक टू दिस। तो मतलब इन द फ्यूचर क्वेश्चंस तो हम लोग अच्छे से भक्ति ट्रेडिशंस को भी डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अच्छा यहाँ पे आगे करो तो पहले इसको डाक दो करते हैं। This consider it didn't happen. चलिए अब let's try to answer the question. Which of the following constitution amendments acts
इंट्रोड्यूस जीएसटी। तो जीएसटी जो है इन कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स। तो इनमें से किसने, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ने जीएसटी जो है वो इंट्रोड्यूस की थी? वाज इट द 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, वाज इट द 102nd, द 104th, 106th? इसके अलावा 103rd में क्या था, 105th में क्या था, 107th में क्या था और 108th में क्या था, क्या है वो आप मुझे मेंशन करेंगे इन द कमेंट सेक्शन। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो फर्स्ट है, हम ऑप्शंस पे जाने से पहले वी विल ट्राई टू focus on the word. What is the term? What is the main term here? Of course, it is GST. Let's learn about GST some. है ना? So GST is a destination based indirect tax जो कि कंजम्पशन गुड्स और सर्विसेज पे लगता है। ठीक है, बेसिकली हमने क्या किया है, हमने फिक्स्ड टैक्स कर दिया है, सबको एक साथ ले आए, सारे टैक्सेस को मर्ज कर दिया है एक सिंगल टैक्स लगाने के लिए। ठीक है, इसकी भी कैटेगरीज हैं। देर इज CGST, देर इज SGST, देर इज UTGST, UT is for Union Territory, देर इज IGST। अब नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा है, उस हिसाब से कैटेगराइजेशन है। GST जो है वो also subsumes various taxes like पहले जनरल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, वैट, एंट्री टैक्स, ये सब पड़ता था, ये सारे एक साथ सबस्यूम होके अब GST है। ओके, now also let's learn about GST Council. GST Council क्या है? GST Council जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ओके, is GST Council a constitutional body? Yes, it is a constitutional body. It is chaired by the Union Finance Minister. Okay, it includes the Union Minister of State for Finance and Finance Minister of all states as members, and Council recommends tax rates, exemptions, procedural guidelines for GST implementation. Impact क्या है GST का? It has simplified the tax structure, reduced cascading effects, and promoted ease of doing business in India. Okay, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि which of the following is not an impact of GST or which of the following is an impact of GST. You can remember this as well. Alright, चलिए, what else has happened? It has also increased tax compliance through mechanisms like e-invoicing, input tax credit, etc. तो ये compliance जो है उसको और strengthen करता है, compliance mechanisms को। चलो, अब GST नेटवर्क क्या होता है? तो GST Goods and Services Tax Network is a non-profit organization responsible for technological infrastructure of GST in India. Okay, it's a non-profit organization. तो ये कैसे फैसिलिटेट करती है? रजिस्ट्रेशन कराती है, रिटर्न फाइल कराती है, पेमेंट जो होती है वो टैक्सेस की वो देखती है टैक्स पेयर्स के लिए, और it's basically is the backbone of the GST system. Alright, चलिए, अब हमने ऑल इन ऑल समझ लिया है GST के बारे में, हमने पूरा ही कवर कर लिया है। ओके, now just move forward and answer the question. So the answer is 101st constitutional amendment. ये कब हुआ था? It happened on 1st July 2017. And this amendment added a new article, which was Article 246A of the Indian Constitution. It also granted both Parliament and Legislature the power to make laws on regarding GST. तो क्या पार्लियामेंट के पास है पावर टू मेक लॉज ऑन GST? यस। तो क्या स्टेट लेजिस्लेचर के पास नहीं है? नहीं, स्टेट लेजिस्लेचर के पास भी है। नाउ GST रिप्लेस मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस like VAT, service tax, excise duty with a unified tax structure to simplify the taxation system. Alright, GST काउंसिल के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, तो GST काउंसिल के बारे में हमने पढ़ लिया, उसका फंक्शंस पढ़ लिया, उसका कॉम्पोजिशन पढ़ लिया, बट एस्टैब्लिश किस आर्टिकल के अंडर हुआ है? 279A के। ठीक है, किस लिए ये काउंसिल बनी हुई? टू रिकमेंड GST रेट्स एंड पॉलिसीज एंड इंश्योरिंग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एंड टैक्सेशन। Alright,
And GST operates as dual tax structure. There's a central GST and there's a state GST. As I mentioned, there's categorization, and there is also intrastate for intrastate, and there is also integrated GST, which is IGST. Okay, chalo. Now we have covered all the questions. Moving forward, I will also tell you about all the other important facts and concepts in Indian polity. बट चलो पहले अब ये देख लें, हम मैं तो भूली गई. कॉन्स्टिट्यूशन का जो 102nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है वो किस चीज के बारे में? इट कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेस द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस. दैट इज द 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. 104th किस बारे में? 2020 में आया था, 20 में आया था, और इट एक्सटेंडेड रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SCs and STs in Lok Sabha and state assemblies for another 10 years, तो अब 25 जनवरी 2030 तक एक्सटेंशन हो चुका है. ठीक है. 106th अमेंडमेंट इज नारी शक्ति अधिनियम. तो पता है 2023 में आया. इट्स वेरी रिसेंट. ये मैंडेट क्या करता है? 33% ऑफ रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड दिल्ली असेंबली. ओके. So now that we have answered this question, do let me know your views on everything that I've learned today, and take screenshots. आज हमने बहुत comprehensively बहुत सारे concepts cover किए हैं, and this will help you in the future questions as well. Alright, so do let me know how you feel about it. How do you like it? Do you understand it or not? Alright, thank you.